A very good evening to all, and welcome to day two of the Python programming boot camp. Right, so today we are at the day two of this boot camp where we are going to cover up these five topics for today's session. And before I start or take up these topics one by one, let's do a quick recap of what we have done yesterday. So yesterday, what we have done, the first thing first, we understood about the inbuilt or will say that the basics, basic data types. तो जो बेसिक डाटा टाइप हैं पाइथन के अंदर तो लाइक हमें इंट या इंटीजर की बात करी, हमने फ्लोट की बात करी या डेसिमल या फ्रैक्शन की बात करी. We talked about the string or text. We talked about the boolean or the bool. So, or we also see that how to construct or create a complex numbers and so on. So these are the basic data types, right? So these are also the values, or these are the data types are there. These are the values are there. Then we understood that how to construct uh, the the variables, right? तो कैसे हम variables create कर सकते हैं और variables को assign कर सकते हैं values. वो values कोई भी हो सकते हैं, either any of these or more. So how to construct the variables? तो variables को assign करना. So this is a assignment operator, single equal to. So उसके बाद हमने बात करी कि variable की naming क्या करनी. तो naming में हमें समझ में आया कि I can name the variable in Python with capital alphabets, okay, A to Z, or using small alphabets A to Z. I can also use the digits or the numbers from 0 to 9. But there is only one condition with the digits, that I cannot start my variable name with the digit. And there is only one special character is allowed, which is a underscore. So I can use only underscore as a special character. So underscore can be used at the beginning, middle, or in the end. बस जो restrictions है वो numbers के साथ हैं, digits के साथ है. So I cannot start my variable name with the digits. Middle में या end में कहीं पे भी use कर सकता हूँ. So we understood about the variable name. Other thing we understood that there are something called as a keywords, right? So हमने keywords देखे. So there are around 35 keywords are there in Python. So I cannot, despite everything okay, I cannot use these keyword as my variable name, right? तो ये रिजर्व है वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जिनको हम नहीं यूज कर सकते फॉर अवर वेरिएबल नेमिंग के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो वो हमने समझा करने के लिए. देन वी फर्दर मूव टू द कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट? तो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जैसा हम कई बार बोलते हैं कि इफ दिस हैपन डू दिस, ऐसे होता है ना, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करिए, एल्स नहीं तो आप डू दिस, और राइट. तो हमारे पास कंडीशंस होती है, मल्टीपल कंडीशंस होती है. तो वी हैव सीन दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट द or use the conditional statement or if statements to perform the task or to check that condition. तो इसमें क्या होता है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो उसका आउटपुट आपको मिल जाता है. अगर ये फॉल्स है तो आप नेक्स्ट कंडीशन को इवेल्युएट करते हैं, राइट? तो जो भी कंडीशन ट्रू हो जाती है वहां पे आपका फर्दर इवेल्यूशन या फर्दर चेकिंग बंद हो जाती है और उसका जो आउटपुट है वो आपके पास आ जाता है. In general, yes, there is if or else रहते हैं दो condition, but I can add multiple conditions also using elif. I can use multiple elif also. तो उस केस में आप multiple conditions को भी check कर सकते हैं और उसके basis पे output को decide कर सकते हैं. So these are the conditional statements are there. Now let's move towards the data structure. तो अभी data structure के बारे में समझते हैं, ठीक है? तो एक डाटा स्ट्रक्चर जो है, आपने शायद इसका नाम, इफ यू पीपल आर फेमिलियर विद एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, और आप जब उस पर बात करते हैं तो डाटा स्ट्रक्चर या डीएसए की काफी बात होती है. सो द पीपल आर टॉकिंग अबाउट द डाटा स्ट्रक्चर की डीएसए या डाटा स्ट्रक्चर. तो उसको एक बार समझते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर होते क्या है और व्हाट आर द डाटा स्ट्रक्चर्स आर देयर. से फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टोर वन वैल्यू, राइट? तो आप x equal to 1 कह सकते हैं, right? So my x has a one value as x equal to 1, right? So or I can assign another value to y or another third value to z or z. Okay, what if, right, मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूँ एक वेरिएबल. आप समझ पा रहे हैं?
तो एक एक वैल्यू नहीं, हम चाहते हैं कि एक्स में मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके नाम स्टोर हो जाए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, उन सबके नाम, ओके, वो एक्स के नाम से, वेरिएबल के नाम से स्टोर हो जाए। So means what? I want to store. I want to store multiple values in single variable. अब इसके लिए क्या होता है? इसके लिए क्या होता है कि देखिए, अब जैसे आप अपने घर की बात करें, तो अगर आपको कोई भी चीज स्टोर करनी है, राइट, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपको कंटेनर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही होता है ना कि अगर आपको बहुत सारा सामान, चाहे इट्स रिलेटेड टू योर some liquid, some solid, or maybe your clothes, etc. etc. तो आपको उसके लिए बुक्स हैं आपकी, तो आपको बैग चाहिए, राइट, लैपटॉप है तो उसके लिए अलग चाहिए। सो यू नीड द कंटेनर, ओके। तो डाटा स्ट्रक्चर भी एक तरीके से कंटेनर है, राइट। तो वो भी एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, एक कंटेनर मान लीजिए, कि जो वैल्यूज को, किसका कंटेनर है? वो वैल्यूज का कंटेनर। उसके अंदर आप अलग अलग वैल्यूज को रख सकते हैं, इंटीजर्स को, फ्लोट को मिक्स करके भी रख सकते हैं, कि थोड़े से आपने इंटीजर रख लिए, थोड़े एक आध फ्लोट लिख दिए, बुलियन भी रख लिया, एंड सो ऑन। तो जरूरी नहीं कि सारे एक जैसे ही हो, तो अलग अलग चीजों को भी मिक्स करके आप भी आइटम्स को कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। So these are the four which are Python inbuilt, right? When you move towards uh, our advanced programming, then you will understand that there are other data structures are there, like linked list are there, okay, Trojan sets are there, right? There are stacks are there, queue are there, ट्री स्ट्रक्चर्स आर देयर एंड सो ऑन। सो और भी तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर ये कैसे हैं जो पाइथन के इनबिल्ट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम इसको समझते हैं। लेट्स बिगिन विद वन बाय वन। सो हम क्या, किस चीज की बात कर रहे हैं? हम इन डाटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट मतलब कैसे बनाते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सो हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरीके से इसको करेंगे, और हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट। तो ऐसा करता हूँ मैं, इनको पहले एक चीज में एक बार, तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं, यानी कि बनाना सीखते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, ओके। सो टू क्रिएट अ लिस्ट इज वेरी वेरी इजी, इनफैक्ट टपल या सेट या डिक्शनरी, राइट। तो अगर आपको ये कंस्ट्रक्ट करने या बनाने, तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो जैसे लिस्ट है, तो लिस्ट को यू कैन, कोई भी चीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, राइट, अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा? वो लिस्ट होगा। अगर मैं उसको राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को स्टोर करता हूँ, तो वो क्या होगा? वो टपल कहलाएगा। और अगर मैं करली ब्रैकेट में अगर स्टोर करूँ, तो वो क्या कहलाएगा? वो सेट कहलाएगा। यानी कि लिस्ट बनाने के लिए यू नीड स्क्वायर ब्रैकेट, और वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर टपल वी यूज राउंड ब्रैकेट, तो टपल के लिए हमें राउंड ब्रैकेट चाहिए। फॉर सेट वी रिक्वायर द कर्ली ब्रैकेट। डिक्शनरी क्या? ठीक है। एनी क्वेश्चन? सो इजी, बहुत इजी है ना, कि आपकी वैल्यूज हैं नाउ, और उस वैल्यूज में आप अगर लिस्ट बनानी है, तो उन वैल्यूज को, मल्टीपल वैल्यूज को आप स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे तो वो लिस्ट कहलाएगा, राउंड ब्रैकेट में कर लेंगे तो टपल कहलाएगा, और कर्ली ब्रैकेट में करेंगे तो वो सेट बन जाएगा, ठीक है। अब डिक्शनरी की बात करते हैं कि डिक्शनरी कैसे है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि डिक्शनरी होती क्या है, व्हाट इज डिक्शनरी। So you people are using your vocabulary dictionary, होती है ना हम सबके पास, किसी भी लैंग्वेज की, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिसे शब्दकोश भी कहा जाता है, टू बी प्रिसाइज। सो वी हैव मैनी डिक्शनरीज आर देयर। सो डिक्शनरी कैसे काम करती है? सो एवरी डिक्शनरी हैज ए वर्ड एंड उसका मीनिंग। ऐसे ही होता है ना, डिक्शनरी कैसे बनती है कि भैया आपके पास वर्ड्स है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, और उनका मतलब है, उनका मीनिंग है करने के लिए, तो उसको हम डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये इसको बोलते हैं की, और मीनिंग को बोलते हैं वैल्यू। मेक सेंस? जिस तरीके से आपकी जो रूटीन की डिक्शनरी है, लैंग्वेज डिक्शनरी है, ओके, या टॉपिक वाइज डिक्शनरी है, तो उसमें क्या होता है? वर्ड एंड देयर मीनिंग, वर्ड एंड देयर एक्सप्लेनेशन, ओके। तो इसी तरीके से जो वर्ड है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो कहलाता है की, ओके, एंड मीनिंग कहलाता है वैल्यू, राइट। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर, कि आपने ऐसी कोई डिक्शनरी देखी है जिसके अंदर एक ही वर्ड मल्टीपल टाइम आया हो?
मल्टीपल टाइम आपने देखा हो कि एक वर्ड रिपीट करा गया हो। क्या ऐसी कोई डिक्शनरी देखी है आपने किसी भी सब्जेक्ट की? नहीं ना, राइट। तो यानी कि एक डिक्शनरी में एक बार जो वर्ड होता है इट इज यूनिक, सो योर वर्ड इज यूनिक, ओके, कैन ऑकर ओनली वंस। तो इसका मतलब की इज यूनिक। तो वर्ड को ही हम डिक्शनरी में या पाइथन में की बोलते हैं, तो की हैज टू बी यूनिक। और ऐसे ही हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी जो डिक्शनरीज हैं वो भी ऐसे ही काम करती है कि वहां पे जो वर्ड्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो रिपीट नहीं होते एक डिक्शनरी में। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं मीनिंग की। आपने ऐसा हुआ है कई बार कि देर आर मोर देन टू वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग। ऐसा होता है ना कई बार, पर्यायवाची भी बोलते हैं, सिनोनिम्स भी बोलते हैं, राइट। सो वी मे हैव डिफरेंट वर्ड्स, टू यूनिक वर्ड्स बट हैव द सेम मीनिंग, राइट। इसका मतलब योर वैल्यू, तो की के साथ क्या, की वैल्यू पेयर, सो वैल्यू कैन बी रिपीट, इज इट ओके? तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, राइट। सो यू कैन, द इजी वे टू लर्न इज टू जस्ट रिमेंबर दैट हाउ इट की वैल्यू और डिक्शनरी, फिजिकल डिक्शनरी और एक्चुअल वर्ड मीनिंग डिक्शनरी वर्क्स। सो इन ए वर्ड मीनिंग डिक्शनरी क्या होता है कि आपके वर्ड्स कभी भी रिपीट नहीं होते। अगर एक अल्फाबेट या एक वर्ड अगर एक बार डिक्शनरी में आ गया तो वो दोबारा नहीं आएगा, राइट। इट लाइक फॉर एग्जांपल शू और टेलीविजन। तो टेलीविजन का एक बार मीनिंग बता दिया तो टेलीविजन का दोबारा रिपीट नहीं होगा उस डिक्शनरी में, बट मीनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड कैन बी रिपीटेड, राइट। तो मीनिंग एक से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है, वैल्यू कैन बी रिपीट। सो मीन्स दैट की आर यूनिक बट वैल्यूज आर नॉट यूनिक। ठीक है, तो ये मैंने अभी कुछ बताया आपको लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी का। अब इसको बारे में मैं अब एक एक लेके चलता हूँ, राइट। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल नेम माई लिस्ट, या इसको ऐसे करते हैं थोड़े। तो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं 1 2 3 लिखूंगा तो वो क्या कहलाएगा, ये क्या बनेगा, लिस्ट। क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में, अगर इसको ही मैं राउंड ब्रैकेट में कर दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, टपल, इट विल बी अ टपल, राइट। तो इस तरीके से आप लिस्ट, टपल ये सब क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने लिस्ट क्रिएट करी। अच्छा, इसमें खाली क्या एक ही होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस समझते हैं ना? डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज यू मीन बाय होमोजेनियस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोजीनियस? हम समझते हैं ना इसका मतलब? होमोजेनियस मतलब एक जैसे, राइट, सिमिलर, राइट। तो अगर एक इंटीजर है तो सारे इंटीजर्स है, नाउ इट इज ए होमोजेनियस, ऑल आर इंटीजर। अगर फ्लोट है तो फ्लोट, होमोजेनियस। हेट्रोजीनियस, सम इंटीजर प्लस सम फ्लोट plus some boolean, etc., etc. So these are called as heterogeneous, right? So list homogeneous, heterogeneous. Now in list is heterogeneous. Heterogeneous का मतलब क्या है कि इसमें मैं 4.3 को भी स्टोर कर सकता हूँ. So I will not get an error, but the value has been stored, right? List can also store like boolean, like true. मैं true false को भी store कर सकता हूँ. Is it okay? I can have some string also like YBI. So I can have strings also. I may have the complex number also like 2j plus 3, right? So list is actually can you, so it's just a very flexible container. ये एक ऐसा डिब्बा है, एक ऐसा कंटेनर है जो बहुत फ्लेक्सिबल है कि आप जो मर्जी चाहे जाके इसमें स्टोर कर दो, राइट। सो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। सो अ लिस्ट कैन बी दिस वैल्यू विद इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हेट्रोजीनियस है करने के लिए, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है, ऐसा करते हैं इसको एक, ये तो इसको एक नाम देना पड़ेगा ना, लाइक वेरिएबल नेमिंग। लेट कॉल इट एज माई लिस्ट। तो मैंने एक नाम दे दिया इसको ऐसे माई लिस्ट, ठीक है। तो अब ये माई लिस्ट क्या है, ये माई लिस्ट के अंदर क्या है, माई लिस्ट के अंदर मेरी वैल्यूज है किसकी, एज ए लिस्ट, ठीक। तो एक बार पूछ लेता हूँ, जरा कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये लिस्ट है भी कि नहीं। तो उसका क्या होता है फंक्शन, टाइप। तो टाइप फंक्शन के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो ये इसका टाइप बता देता है, राइट। तो हमने माई लिस्ट जो वेरिएबल है उसका पूछा कि इसका टाइप क्या है, भाई ये क्या है, ये इंटीजर है कि फ्लोट है, कि बूलियन है। तो नाउ दिस इज ए लिस्ट, राइट। तो क्यों लिस्ट है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अब आप देखो, मैं करना नहीं चाह रहा बट जस्ट आपको शो करने के लिए, अब इसी को मैं अभी स्क्वायर राउंड ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। नाम वही रखा माई लिस्ट एक बार को, अभी मैं ठीक कर दूंगा दोबारा से। और फिर पूछा कि टाइप क्या है, तो वो क्या बोले, टपल। तो ऐसा नहीं है कि मैं माई लिस्ट बोल रहा हूँ इसलिए ये लिस्ट है, पाइथन को इससे कोई मतलब नहीं है कि वेरिएबल नेम आप उसको क्या कह रहे हो। ये तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए माई लिस्ट लिखा है, राइट। पाइथन कहाँ से पकड़ रहा है कि आपने ब्रैकेट कौन से यूज करें। स्क्वायर है तो वो लिस्ट है, राउंड है तो वो क्या है, टपल है, राइट।
इसी तरीके से इफ आई यूज कर्ली ब्रैकेट हियर, ओके, और फिर इसका पूछता हूं तो ये कहेगा ये सेट है। तो मेरे ख्याल से एक ही गो में और एक ही सैंपल के साथ वी हैव अंडरस्टूड कि लिस्ट टपल सेट बनाना कितना इजी है। सो सो कितना इजी है करने के लिए, ठीक है। सो या यू जस्ट नीड टू चेंज द ब्रैकेट। सो स्क्वायर is a list, round is a tuple, and curly is a this. या तीनों ही हेट्रोजीनियस है। या मैंने अभी देखा ना शिवम, तभी मैं जानबूझ के कर रहा था कि एक ही डाटा सेट के ऊपर, तो ताकि आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सो सो एवरीथिंग कैन बी दिस, राइट। सो इसको जो है वो हेट्रोजीनियस से कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, नाउ लेट्स गो बैक टू लिस्ट। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, राइट। तो अब ये एक्चुअल में लिस्ट है, माई लिस्ट लिस्ट है। अब हमारे को एक लिस्ट बनानी आ गई। अब क्या करें, लिस्ट बनाने आ गई तो अब लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, राइट। तो लिस्ट एक ऐसी एक कंटेनर है या डाटा स्ट्रक्चर है, ओके, डीएस डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, जो म्यूटेबल है। म्यूटेबल समझते हैं आप, राइट। देयर इज अ टर्म विच वी आर गोइंग टू यूज, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यूटेबल? म्यूटेबल समझते हैं, म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो सकता है, म्यूटेट हो सकता है। जैसे वायरस होता है ना, जैसे कोविड आया था, तो आपने काफी सुना होगा, वायरस अपना, अभी ये वायरस है, अब उसने अपने आप को चेंज कर दिया, तो एंटीबायोटिक्स का असर उस पर नहीं हो रहा, तो मतलब इट इज गेटिंग म्यूटेट और गेटिंग चेंज, ओके, टू समथिंग एल्स, जिसको चेंज कर सकते हैं। यस, या सो म्यूटेबल है तो यानी कि मैं चेंज कर सकता हूँ। इम्यूटेबल का मतलब होता है मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। बट चेंज करने से पहले, से फॉर एग्जाम्पल मैं रिया पूछता हूँ कि मेरे को ये 3 को 30 बनाना है, 3 को 30 बनाना है, चेंज करना है, पॉसिबल है? The answer is yes. Okay, list is mutable, right? पर मैं कैसे बताऊंगा कि ये 3 है कहाँ पे? मतलब 3 मेरे को बताना पड़ेगा ना कि पाइथन को या कोडिंग के थ्रू कि भाई यस, एलिना इज राइट। तो इसको कहते हैं इंडेक्सिंग, इसको कहते हैं इंडेक्स नंबर या इंडेक्सिंग, ओके। यानी कि इसको कहते हैं पोजीशन। तो मेरे को पाइथन को बताना पड़ेगा, कोड के थ्रू बताना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे मेरे को वैल्यू को चेंज करना है, राइट, राइट। सो इन पाइथन और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, द काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। काउंटिंग कैसे स्टार्ट होती है? जीरो से। इज इट ओके? तो ये जो 1 है, इसका इंडेक्स क्या है? जीरो। 2 है, इसका इंडेक्स क्या है? 1। 3 है, इसका इंडेक्स क्या है? 2। इसका 4, ट्रू 5, इसका 6, इसका 7। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा माई लिस्ट कि फोर्थ पोजीशन को चेंज कर दो फॉल्स से, तो आपके हिसाब से क्या होगा? आपके हिसाब से क्या होगा, क्या किससे क्या बदलेगा? नहीं, फॉल्स आ जाएगा, बट फॉल्स किसकी जगह पे आएगा? इन प्लेस ऑफ व्हाट? इन प्लेस ऑफ व्हाट? अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। सो थैंक्स। सो दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। थैंक्स, थैंक्स, मैं खा गया था, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। सो इफ आई, so false will be in the place of true. Supriya is right, okay, Yogesh is right, okay. So 4.3 नहीं, 0 1 2 3 4 5 6, okay. So true की जगह false हो जाएगा, you are right, ठीक है। अब अगर मैंने लिखा समथिंग लाइक दिस, जस्ट आप बताइए, फिर अभी करेंगे भी, एक्चुअल में भी करेंगे, जस्ट अभी जस्ट एक बोर्ड के ऊपर करते हैं। माई लिस्ट से 2 इक्वल टू 30, तो अब क्या 30 बन जाएगा? व्हाट विल बिकम 30? 3 बिकम 30। एनी कंफ्यूजन? एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन? होप सो नो, इजी, राइट, ठीक है। चलिए, अब एक चीज और हम समझते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग, ओके। क्योंकि एक हम इनिशियल से, क्योंकि हम जब भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी एक्सेट्रा, सो वी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लैंग्वेज पढ़ते हैं, बट देर इज आल्सो पॉसिबिलिटी टू कॉल द थिंग्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। दिस इज कॉल्ड एज ए रिवर्स इंडेक्सिंग। तो ये इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको। तो ऐसा नहीं कहते कि इसको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं, जस्ट इंडेक्सिंग। एंड इन द रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम राइट हैंड टू
लेफ्ट हैंड, दिस इज कॉल्ड एज ए रिवर्स इंडेक्सिंग। ठीक, तो आपको रिवर्स इंडेक्सिंग, तो रिवर्स इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग में कैसे होता है? रिवर्स इंडेक्सिंग में क्या होता है कि दिस पोजीशन जो अभी 6 है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में या इंडेक्सिंग में, इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, -4, -5, -6 एंड -7। क्लियर? ठीक है, सो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, so this is called as a reverse indexing. Any question? Any question on this? So we have indexing starts from 0 and the reverse indexing starts from, reverse indexing कहां से शुरू होती है? -1 से। ठीक है, तो इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है पर मिनट, रिवर्स इंडेक्सिंग -1 से होती है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे दोबारा करता हूं कि दिस इज द वे आई कैन put the index number, okay, and I can put the index number this way also, okay. So this is called as a indexing and this is called as a reverse indexing, right? So indexing the first element, तो लिस्ट के एलिमेंट है ना ये तो सारे, राइट, एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट, तो दिस इज टैग्ड एज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, and in reverse order, and in the reverse order it is -1, this is -2, this is -3, this is -4, -5, -6, -7, डन। जीरो कैसे हो सकता है विराज? नहीं तो किसको जीरो बोलेंगे? मैंने अभी फॉरवर्ड और रिवर्स में कोई भी कोलिजन नहीं है। कोलिजन समझते हैं ना, कि एक इंडेक्स नंबर दो वैल्यूज को असाइन नहीं करता। अगर मैं जीरो बोलता इसको, तो फिर पाइथन किसको जीरो मानता, इसको या इसको? कंफ्यूजन हो जाती ना, कंफ्यूजन हो जाती ना, अगर जीरो होता रिवर्स में तो फिर जीरो किसको मानते, लेफ्ट से फर्स्ट को या राइट से फर्स्ट को? इसलिए लेफ्ट से या कोलिजन हो जाती है, कोलाइड हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए हम क्या क्या करा कि नॉन कोलिजन के लिए रिवर्स इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम -1, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं। ग्रेट, नाउ लेट्स डू सम use of this. So my list and say 0 means first element, let's make it 10 and then print my list and enter. Now you see, or you observed that the the first element whose index is 0 is replaced by 10. Done, is replaced by 10. Similarly, you can change any. Let's use reverse indexing. So I want to replace this true. I want to replace this true from reverse. So -1, -2, -3. So I will replace -3 with false, right? So let's do this. -3, change it with. So I can change it with anything, okay? But let's change it with false. So now true become false, right? So this is called as a indexing. So I want to select, ठीक है? तो इसको कहते हैं इंडेक्सिंग कहते हैं। अब क्या करते हैं? सो देयर इज समवन हु हैज आस्क्ड अबाउट द स्लाइसिंग। अब आपका मन क्या कहता है? आपका ये कहता है कि सर ये तो ठीक है, ये तो दिस इज माय लिस्ट, आई वांट नॉट, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू, चेंज नहीं करना चाहता। तो अगर आपको कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, कोई भी एक, ओके, सो से फॉर एग्जांपल 3, तो ये क्या करेगा? इट विल इट विल सेलेक्ट द थर्ड इंडेक्स एलिमेंट, इसको बोलते हैं you are selecting, okay, so 0 1 2 3, so आपको 4.3 select हो गया। now you want to select 4.3 and false also, right? So the syntax is like this, your list, whatever list you have, then your start point, then end point, here and is not included, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि
इंडेक्स के अंदर नॉट इंक्लूडेड, तो ये इंक्लूडेड नहीं होता, राइट। तो अगर मेरे को से फॉर एग्जांपल 10 0 1 2 3 4 5 6, तो मेरे को अगर ये 4.3 और फॉल्स चाहिए तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे, माई लिस्ट starting from third index and ending at 5. Why 5? Because 5 is not included means it will extract 3 and 4th position, third and fourth position element, right? So क्योंकि fifth से एक कम पहले ये रुक जाएगा. So let's do it. So I will extract 3 is to 5. So it will extract 4.3 and false and false. Okay. Now if I select say 6, okay, so it will extract the third element, it will extract the fourth element, it will extract the fifth element, fifth index, okay, index element, okay, not the sixth. So this is the 0th index, first index, second index, third index, yes, fourth index, yes, fifth index, yes, sixth, no. So this much will be extracted or sliced. I click on this, you'll see that this. So this is how the slicing works. तो आप स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इंफॉर्मेशन स्लाइस कर लेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द another which is a tuple. So let's create a tuple, my tuple, okay. So is equal to, अब मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, सबको वैल्यूज को वैल्यू सेम रख लेते हैं, बट क्या चेंज करना पड़ेगा टपल के लिए, आई हैव टू पुट द राउंड ब्रैकेट एंड रन. तो मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया, रन करा, और दिस इज माय टपल. तो ये क्या है, इसका टाइप पूछूं, अभी देखा ही था हमने, टाइप तो करके देखा ही था ना सबका, तो चेक कर लिया था. तो ये टपल, ओके. चलिए अब मैं बताया इसके कि आपको कुछ बताऊं कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, आई डोंट नो, ओके. मैं अब स्लाइसिंग फिर इस पे ट्राई करता हूं, राइट. हाँ, तो शिवम क्या करता हूं, जो अभी हमने स्लाइसिंग सीखी थी ना, टपल पे भी ट्राई करता हूं, करूं क्या, शुड आई ट्राई, यस, ओके, यस, 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 ठीक है. तो से फॉर एग्जांपल आई एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट एलिमेंट, माई टपल. तो माई टपल का फर्स्ट एलिमेंट मैंने कहा तो सेलेक्ट हो गया. तो विच इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द 0th पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, राइट. इफ आई पिक -1, तो -1 में क्या आएगा, ये आ जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर. सो से आई सेलेक्ट द -1, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. तो आई मीन्स दैट आई कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, मैं इंफॉर्मेशन को ड्राइव कर सकता हूँ या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. लेट्स यूज अगेन स्टार्ट एंड एंड. सो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल थर्ड. तो ये क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, 0th एलिमेंट, यस, फर्स्ट, यस, सेकंड, यस, थर्ड, नो. सो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 1 2 3. आई रन दिस, नाउ आई हैव 1 2 3 डन. सो स्किप भी कर सकते हैं, फॉर देन यू नो स्टेप्स जिसे बोलते हैं. तो दिस इज हाउ आई कैन एक्सट्रैक्ट. अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं, चेंज करते हैं. लेट्स चेंज 1 विद 10, एक को 10 बना देते हैं, या ट्रू को फॉल्स कर देते हैं, कर दे जैसे लिस्ट में करा था. शुड वी डू, राइट, लेट्स चेंज 1 टू 10 और ट्रू टू फॉल्स, और एटलीस्ट ट्राई टू डू, कोशिश तो करके देखते हैं, ठीक, कोशिश तो करके देखते हैं, ठीक है. तो कैसे लिखा था हमने, सो हमने कहा माई लिस्ट 1 को क्या बना दो, 10 बना दो, 1 0, ऐसे तो लिखा था लिस्ट में भी, ऐसे था ना, लिस्ट में ऐसे ही कर रहे थे ना, कि -3rd पोजीशन पे जो है उसको फॉल्स कर दो, यानी कि -3rd पे क्या था, ट्रू, राइट हैंड साइड से. हमने कहा कि जो 0th पोजीशन पे 1 है ना, इसको 10 कर दो, किसमें, टपल में. आई विल रन द कोड, ओके. एरर आ गई, कहा गया, आई गॉट द एरर, यस, नो, ओके. सो व्हाट इज व्हाई द एरर इज, बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल. क्या है, इम्यूटेबल. इम्यूटेबल किसे कहते हैं, जिसको चेंज नहीं कर सकते, राइट. तो आप इसको बना सकते हो, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, स्लाइस कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, राइट. बट यू कांट चेंज द वैल्यूज, इट इज इम्यूटेबल. इज इट ओके, राइट. सो
हाँ, विराज कह रहा है कि पहले इसको लिस्ट बना लो, लिस्ट से टपल बना दो। तो ठीक है, वो सब कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट आई कैन नॉट चेंज इट, राइट? तो मैं ओवरराइट नहीं कर सकता, राइट? जैसे होता है ना, कई बार आपकी राइट प्रोटेक्शन होती है पेन ड्राइव पे या हार्ड डिस्क पे या फाइल होती है, तो इस तरीके से टपल इज अ डाटा स्ट्रक्चर विच इज राइट प्रोटेक्टेड, आई कैन नॉट राइट इट। तो उसको कर सकते हैं, ठीक। चलिए, आ, अब अगर मेरे को इसको रिवर्स में एक्सट्रैक्ट करना हो, से फॉर एग्जांपल, तो इसका इंडेक्स क्या है? -1, -2, -3, -4। ओके, सो लेट्स राइट। तो आप क्या कहते हो कि -1 राइट इज टू -3, राइट? ओके, सॉरी, असाइनमेंट हटाना पड़ेगा, राइट? तो अब क्या हुआ? -1 से शुरू नहीं हो सकता, शुरू इसको कहां से होना पड़ेगा? -3 से ही। तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान करना है, नंबर छोटा बड़ा नहीं देखना। आपको ये नहीं देखना कि 1 छोटा है, 3 है। ओके, तो -1 और -3 में छोटा कौन सा नंबर है? विच इज अ स्मॉलर नंबर एज कंपेयर इन -1 एंड -3? -3। ओके, सो -3 शुड कम हियर। सो हम -3 से शुरू करके कम से बड़े की तरफ जा रहे हैं, right? Now I have a true and YPI. Is it okay? So I am starting from -3 and -1 is not included. So this is -3, this is -2, it is expected, and -1 not included. Make sense? ठीक है? तो चाहे आप फॉरवर्ड स्लाइसिंग करें या रिवर्स स्लाइसिंग करें, आपको ध्यान देना है, you have to start the number from smaller to larger. Is it okay? With sign. अगर -3 है तो -3 इज ए स्मॉलर नंबर एज कंपेयर टू -1। ये मत देखिएगा 1 इज स्मॉलर देन 3। हाँ, लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। ओके, अलीना, सो द सेम इज पॉसिबल फॉर द लिस्ट आल्सो। सो दिस इज कॉल्ड एज योर स्लाइसिंग इज देयर, बट टपल इज इम्यूटेबल। ठीक। तो अभी देखो, एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी और अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, दिस इज अ बूट कैम्प, राइट? दिस इज नॉट ए पाइथन प्रोग्रामिंग फुल कोर्स, right? So we try to cover up the things, okay, and not in detail, right? नहीं तो अदरवाइज लिस्ट में बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेरे को पता होना चाहिए। आई शुड नो हाउ टू अपेंड, हाउ टू पॉप, हाउ टू डिलीट, ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो जो आने चाहिए हमारे को, बट वी आर वर्किंग विद द फ्यू, वेरी फ्यू। ठीक है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज के हिसाब से वी आर वर्किंग विद द फ्यू। नाउ लेट्स, आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू सेट की एक प्रॉपर्टी है, उसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, राइट? तो वो प्रॉपर्टी क्या है सेट की? सो आई वांट टू क्रिएट माय सेट। नाउ आई नो द सेट इज ए विद इन कर्ली ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। लेट यूज 1 1 1 2 3 YBI, ओके, से यहाँ पे 30 1 1 1 2 3 YBI, ओके, एंड से इज इट ओके? ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, आप देखो, मैं आपको दो चीजें इसकी सेट की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बताता हूँ। सेट इज आल्सो कॉल्ड एज ए ऑर्डर्ड पेयर, ओके, एंड सेट रिमूव डुप्लीकेट। इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते सेट्स के अंदर। तो सेट्स जो कैसे क्यों फर्क है, हमें ये समझ में आ गया कि टपल लिस्ट से कैसे फर्क है। टपल लिस्ट इज म्यूटेबल, यानी चेंज कर सकते हैं, एंड द टपल इज इम्यूटेबल, सो दैट्स हाउ दे आर डिफरेंट, राइट? एंड सिमिलरली इन केस ऑफ सेट, ओके, सो सेट की जो दो प्रॉपर्टीज वी आर लुकिंग फॉर, कि एक तो ये ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, उस तरीके के ऑर्डर की बात मैं कर रहा हूँ। एंड दे रिमूव द डुप्लीकेट। अगर डुप्लीकेट फोन नंबर होंगे रिमूव हो जाएंगे, डुप्लीकेट पैन कार्ड नंबर होंगे रिमूव हो जाएंगे, राइट? तो अगर जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है ये रिमूव कर देगा, ठीक। तो लेट्स सी, तो ये एक हमने सेट बनाया, ओके, तो मैंने सेट बनाया तो ये सेट आ गया। मैंने टाइप पूछी कि माई सेट की टाइप क्या है, तो इट इज अ सेट, राइट? इट्स नॉट नथिंग एल्स। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ माई सेट को, ओके।
Now, while printing, okay, you see that something has happened. What has happened? What has happened? This 30, which is in the first position, now it is a ordered pair. 1, 2, 3, 30. आप देख रहे हो ना, ऑर्डर है, सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, राइट? राइट? सो it is a ordered pair, right? दूसरा, if there are multiple one are there, okay, so duplicates removed. अब सिर्फ इसमें एक ही वन बच गया. Make sense, right? Duplicate numbers remove हो गए और ordered हो गया. Second, I what do you mean by true? True को क्या मानोगे आप? One या zero? What is true? Is it a one or zero? One na? Yes. So how to check true is one? So say if I say true plus two, what should be the answer? True plus two का आंसर क्या आना चाहिए? True plus two, what should be the answer? False. जतिन कह रहा है दो सही मिलके एक गलत. Okay, right? So let's run because two is a one, so true plus two is answer is two. Okay, तो इससे पता लगता है कि true actual में back end में one है. Because true is in the back end is one, so in my final set true जो है उसको भी उसने drop कर दिया या उसको remove कर दिया. Is it okay? Because true is nothing, just one. So that's why true is also removed as a duplicate in the set. Clear? Right? So अगर zero होता, false होता तो उसके साथ भी ऐसे ही होता. Because false is zero. So it removed the false. Keep the zero. Is it okay? So ये set की property है कि भाई आप इसको ordered हो जाता है. Right? Okay? और साथ में तो नुमन इसको ऐसे मानते हैं कि let's have some zero. So I have zero also and I have a false also. Now I know zero and false are one and same thing. Okay, so you'll see that इसने जीरो और false में से एक को रखा. किसको? जीरो को रखा. ओके, false को रिमूव कर दिया और जीरो जो हमने सबसे आखिरी में लिखा था उसको सबसे आगे लिया है ऑर्डर्ड पे. मैं बस यही बात बताना चाहता हूँ. राइट, सो दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि सेट की दो प्रॉपर्टीज, एक मतलब लिस्ट इज म्यूटेबल, हेटेरोजीनियस तो सारे ही हैं. राइट, so all these list tuple set are heterogeneous, right? उसमें आप किसी में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं. A list you can change, a tuple you cannot change, immutable. Set remove the duplicates and it is a ordered pair. ये ordered pair है. फिर उसके बाद जब एक आती है बात हमारी एज ए डिक्शनरी. ठीक, तो डिक्शनरी की बात आती है तो डिक्शनरी इज लाइक योर आई विल से की वैल्यू पेयर. तो डिक्शनरी बनाने के लिए अब आ जाते हैं. सो लेट्स से माय डिक्ट. ओके, शॉर्ट फॉर डिक्शनरी. अगेन डिक्शनरी इज मेड बाय करली ब्रैकेट. ओके, सो डिक्शनरी को बनाने के लिए भी सेम ब्रैकेट यूज होते हैं जो सेट के लिए होते हैं. बट डिक्शनरी हैज टू कंपोनेंट. ओके, इट हैज a key, right, and a value. A key have to be unique. Value can be non-unique also and can be many also. तो मैं ये दोनों चीजों के बारे में समझाता हूँ करने के लिए. Like for example, I'm just storing the age of the students. Okay, so age of the student is say 12 years, right? So what is this? This is a dictionary, a key and value. If I uh, write my dict, okay, so my dict, it will age. So age is the key and the age of the student is 12 years. Okay, can I only have in my dictionary only one word? क्या एक ही एक लेटर एक एक अक्षर होता है एक डिक्शनरी में? नहीं, बहुत सारे होते हैं ना. इट कैन हैव मैनी. ओके, सो इन द सेम डिक्शनरी आई कैन हैव से एज के बाद मैं हाइट भी स्टोर करना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स की. सो हाइट इज से 100 समथिंग, सम वैल्यू एज 100. ओके, राइट, सो मैंने इसको रन करा. ओके, नाउ इट हैज ए की एंड वैल्यू पेयर. ओके, सो आपने देखा 12 और हाइट आ गई करने के लिए. ठीक है, सो एज इतनी, हाइट इतनी. से फॉर एग्जांपल say a age in say month, etc., whatever, say 100 months, right? So 100 months है, ये years में नहीं है, age in months. Height is also in 10. Can my values be duplicated? Yes, कोई issue नहीं है. मतलब age भी 100 months हो सकती है, 100 महीने, right? तो 12 महीने का एक साल होता है, या right? So या मैंने कहा 120 महीने
और 120 सेंटीमीटर हो सकता है। So both can be 120, 120. So values can be duplicated. Can I have a duplicate key? Okay. Age. Okay. Right. Okay. So duplicate key जो है उसका कोई मीनिंगलेस है। उसमें आप देखोगे वो मर्ज हो गई। वो क्या हो गई? मर्ज हो गई करने के लिए। So duplicate keys are meaningless. Okay. So key have to be unique. Key have to be unique. Okay. So जो key है वो यूनिक है। वो ओवरराइट होती रहेंगी and so on. So it has to be unique. So your key have to be unique. Otherwise वो दोनों को स्टोर नहीं करेगा। वैल्यूज डुप्लीकेट को स्टोर कर देगा। मेक सेंस? राइट? ठीक है? तो ये आपकी हाइट आ गई। ऐसे ही आपने वेट लिख लिया अपने स्टूडेंट्स का, राइट? एंड सो ऑन सो फोर्थ। So this is called as a dictionary. It is called as a dictionary with key value pair, right? तो आपने डिक्शनरी आई, इस तरीके से आप डिक्शनरी ऑफ नंबर्स एक्सेट्रा, तो आप मल्टीपल डिक्शनरीज बना सकते हैं। सो दिस इज आल्सो द डिक्शनरी, अ वंडरफुल थिंग टू लुक फॉर, राइट? सो डिक्शनरी आती है। अब हम क्या करते हैं? अब जो आई फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, इज टू क्रिएट द फंक्शंस। ठीक है? सो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे मैं आपको क्या बोलता हूँ, यूजर, यूजर कौन? आप और मैं। यूजर डिफाइंड functions. Okay, users defined function. Okay, like for example, there is a function length of my list, right? So len is a function. Okay, ये length function कहाँ से आया? 7 एलिमेंट। ये क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि फंक्शंस होते हैं दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? इनबिल्ट, राइट? तो जैसे हमारी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 एलिमेंट है, इसलिए इसने बोला लेंथ ऑफ माय लिस्ट इज 7। ठीक है? तो मैंने देख लिया कि भाई ये सो लेंथ और लेंथ इज ए इनबिल्ट फंक्शन, पाइथन का अपना फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है? राइट? सो आप ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये आपने बाहर से लिया। हमें ऐसे फंक्शन नहीं चाहिए, हमें फंक्शन खुद बनाना है। हम चाहते हैं कि हम फंक्शन खुद बना सकें, यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट? ओके, सो वो फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसका बनाने का तरीका बहुत ईजी है। इट्स वेरी इजी। आपको क्या दिखाना है? सो इट स्टार्ट्स विद द कीवर्ड। कीवर्ड तो आपको पता है ना, कीवर्ड किसे बोलते हैं? वो उनमें 35 में से कोई एक जो रिजर्व्ड है, जिसको हम वेरिएबल नेम की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ऐसे एक कीवर्ड है जिसका नाम है डेफ, डिफाइन। ओके, सो दिस इज द कीवर्ड विच इज फॉर डेफ या डिफाइंड, हम बात करते हैं करने के लिए, राइट? तो डेफ है। इसके बाद क्या करेंगे हम? वी हैव टू गिव आवर फंक्शन अ नेम। कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। लेट्स कॉल इट एज अ डमी और राउंड ब्रैकेट। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है डमी। ये कुछ नहीं करता, ना ये कुछ लेता है ना कुछ देता है, राइट? और मैंने कह दिया पास। पास मतलब कुछ मत करो, नथिंग। सो आई रन। ओके, सो डू आई हैव समथिंग एज डमी? ओके, सो अगर मैं डमी करूं तो ये एक फंक्शन बन गया है जो ना कुछ देगा ना लेगा। मेक सेंस? थोड़ा सा ध्यान देना। मतलब आई एम गोइंग टू डू टू टू थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, ट्राई टू एक्सप्लेन टू टू थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? तो आपने देखा कि एक लाइन का कोड है डेफ डमी, राइट? सो यस, सो डमी एक फंक्शन है। ये डमी क्या है? आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, आप डंप भी कह सकते हैं, राइट? सो अब फंक्शन का नाम क्या हो गया? डंप, राइट? सो अब आप कहेंगे डंप, तो इसमें आप डंप कहा तो ये है करने। चलो, अब डमी के बाद एक डंप फंक्शन बना देता है। डंप फंक्शन क्या है? वो ना कोई एक आपसे वैल्यू मांगेगा, आपको कुछ देना पड़ेगा इसे, और वो जो देना पड़ेगा उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। आपने बोला ए, राइट? और आपने ये फंक्शन बना दिया, रन कर दिया, राइट? आपने एक चीज देखी, अच्छा मैं रुकिए, तो ऐसे समझाता हूँ मैं। मैंने फंक्शन बनाया था डमी, ओके, राइट? इसके अंदर कुछ नहीं लिखा था। जब मैं इस फंक्शन को डमी को कॉल करा या यूज करा, तो इसने ना तो मेरे से कुछ मांगा ना कुछ दिया। So there is no input and output because I have not defined any input within this round bracket. पर मैंने डंप, डंप यार्ड होता है ना, कचरा घर, तो
एक डंप के नाम से एक फंक्शन और बनाया, जिसमें मैंने अंदर बोला कि कुछ दो, मेरे को इनपुट चाहिए, आउटपुट कुछ नहीं दूंगा, पास। पास मतलब पास, नथिंग। अब ऐसा करते हो जैसे डमी फंक्शन को मैंने रन करा ना, डंप फंक्शन को भी मैं रन करता हूं, ये एरर देगा। ये क्या बोल रहा है कि आई नीड वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, मेरे को कुछ तो दो, गिव मी समथिंग। ओके, क्यों? क्योंकि हमने बनाते हुए बोला कि इसको कुछ वैल्यूज चाहिए। अब डंप को क्या वैल्यू चाहिए, मैंने 10 लिख दिया, ये खुश है। आपको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब डंप के अंदर ट्रू लिख दो तब भी सही है, मतलब आपको कुछ ना कुछ इसमें लिखना पड़ेगा, राइट? तो दिखा, अब आपको समझ में आया, राइट? सो द की वर्ड इज डेफ। डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन योर फंक्शन, ओके? देन द फंक्शन नेम, so this is a function name, and within round bracket you have to define the input, okay? इस फंक्शन को चाहिए क्या? अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, इसको कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं a कोमा b लिखता हूं, ओके, अभी तो मैंने ट्रू से काम चला दिया, अब फिर फंक्शन को मैंने रन करा, अब डंप को खाली ट्रू के साथ रन करता हूं, तो ये फिर एरर देगा। वो क्या कहेगा कि मेरे को दो चाहिए थे, आपने एक ही दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा a और b। क्यों? क्योंकि हमें ये फंक्शन बनाने वाले हैं a प्लस b करने के लिए। अब ऐड तो तभी कर सकते हैं जब दो नंबर होंगे, ओके? सो आई थिंक यू नाउ गॉट द क्लू और अंडरस्टैंडिंग that after the defining the name of the function, if you are defining any arguments, okay, तो आर्क्स या आर्गुमेंट्स, तो उतने आर्गुमेंट इसको चाहिए। तो मैंने एक कह दिया ट्रू, एक कह दिया वाई बी आई। कहाँ है ना अपार्ट, ट्रू एक बुलियन है, वाई बी आई स्ट्रिंग है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, पर इसको दो चीजें चाहिए चाहिए। मेक सेंस? या आर्गुमेंट इन फंक्शन, सो टू इनपुट्स आते हैं। वाई टू इनपुट? बिकॉज वी हैव मेड इट सो। ठीक है, तो अब हमने सीख लिया कि अगर फंक्शन से इनपुट मांगने के लिए मेरे को कैसे इनपुट डिफाइन करनी है। तो जितने में वहां पे अच्छा, ये ए और बी चलेगा क्या? इसकी जगह क्या मैं एक्स और वाई भी बोल सकता हूँ क्या? टोटली ओके, नो इश्यूज, ओके। इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसको अंदर क्या बोला, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज ए लोकल वेरिएबल, ओके? तो इसका नाम यहीं तक है, इसका बाहर कोई मतलब नहीं है, ओके? यू मे कॉल इट एज एक्स वन वाई, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे आप उसको क्या लिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने कोमा लगा के यू हैव रिटर्न टू आइटम्स, सो इट विल आस्क यू फॉर टू इनपुट्स। इज इट क्लियर? राइट? तो आप उसको वहां पे एक्स वन वाई बोल रहे हो, एक्स वन, आप ऐसे बोल दो एक्स वन और से another variable name, say YBI, okay? Doesn't make difference। आप कुछ भी बोलो उसको, आप कुछ भी बोलो, राइट? रोहन, सोहन, ओके, राइट? तो कुछ भी बोलो आप उसको, तो वो एक लोकल नेम है, बट आपने दो बोला तो इसलिए इसको दो चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। आपने कुछ नहीं बोला तो आप दे नहीं सकते, राइट? तो अगर मैं डम्पी डमी के अंदर दूंगा तो एरर देगा, भाई जीरो चाहिए था आपने क्यों दे दिया, आपसे मांगा नहीं। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन। ठीक है, अब हमें इनपुट देनी समझ में आ गया, अब हमें चाहिए आउटपुट। So let's create a function to add the number. So let's create a function as add. Okay. So I want to add the numbers. कितने नंबर? तीन नंबर ऐड करने। So let call the number as क्या कहना, ABC बोल दो, एम पी क्यू आर टी बोल दो, पी कोमा क्यू, जो आपका मन है, पी क्यू आर बोल दिया, ठीक है? कॉलन, एंटर। अब करना क्या है? करना क्या है? सो आई वांट टू रिटर्न द P प्लस Q प्लस R। अब आपको क्या लगता है कि ये फंक्शन क्या करेगा? What this function will do? What this function will do if I run? So मैं इसको क्या करता हूँ, इस फंक्शन को डेफ डिफाइन करता हूँ, रन करता हूँ। अब मेरे पास एक फंक्शन आ गया ऐड के नाम से। इस फंक्शन को मैं जो भी तीन नंबर दूंगा ना, उसको ऐड करके मेरे को दे देगा। तो एडिशन ऑफ दिस इज 6। इफ आई राइट इट लाइक दिस, लाइक फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या करेगा ये डेफ फंक्शन? P प्लस क्यू इंटू आर, बॉड मास नहीं करेगा, देखना। तो 1 प्लस 6, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, okay? So so how easy it is to define any function? Just start with the keyword, give the name to your function, define how many arguments it requires, okay? And then after the return keyword, define उसका करना क्या है, उसका करना क्या है, ठीक है? प्रिंट वगैरह की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट ऐड हर्षित रिटर्न, and you are getting the things done, ठीक है?
अब आप लोगों का टास्क है, आपका टास्क क्या है? यू पीपल हैव टू गिव मी अ फंक्शन which is a miscellaneous function. क्या है फंक्शन का नाम? क्या है? Miscellaneous. So you have to define a function named miscellaneous. Okay, this miscellaneous function will take a number, okay, and give the number itself, then the square of the number, then the cube of the number, then square root of the number and the cube root of number. देखो, एक नंबर लेगा और उसकी ये सारी चीजें आपको देगा. राइट द फंक्शन. चैट में लिखिए अगर आपको ऐसा फंक्शन बनाना है. राइट, आपका कस्टमाइज फंक्शन है, आपका मिसलेनियस फंक्शन है. सो दिस इज अ फंक्शन. नाउ इफ यू हैव टू राइट अ फंक्शन इन पाइथन, देन व्हाट विल बी द कोड? हाँ, मैंने बोला ना रविशंकर ऐड की जगह कुछ भी लिख सकते हैं. राइट, सो बट ऐसा नाम होना दो जो रीडेबल हो. ओके, समृद्धि. उसके बाद हाँ, वो भी कर सकते हैं अंशुल. पहले जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दो. तुषार, इसके आगे क्या? इसके आगे क्या? रिटर्न क्या करना है? और बहुत इजी है. तो मिसलेनियस से एक्स, आप लोग एक्स बोल रहे हैं तो मैंने भी एक्स बोल दिया. रिटर्न क्या करना है? रिटर्न क्या करना है? एक तो एक्स को ही रिटर्न करना है, और एक्स के स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कल करा था ना. तो वी हैव डन द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर. कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को? कैसे लिखेंगे? गुड, वेरी गुड. सो एस्ट्रिक एक्स 2, तो आई गॉट स्क्वायर. क्यूब को कैसे लिखेंगे? एक्स. ओके, स्क्वायर रूट को कैसे लिखेंगे? कल बताया था ना बॉडमास के उस केस में 0.5 लिख दीजिए या ब्रैकेट में 1/2 लिख दीजिए. और एक्स क्यूब रूट को कैसे लिखेंगे? 1/3. ओके, मेक सेंस. तो अब ये आपका फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा एक्स. एक्स देगा, एक्स का स्क्वायर देगा, एक्स का क्यूब, और 3 आ जाएगा. एक्स का क्यूब देगा, एक्स को स्क्वायर रूट देगा, 0.5 लिख दीजिए या ब्रैकेट में 1/2 लिख दीजिए. वन एंड सेम थिंग. और एक्स का क्यूब रूट देगा. आई मेक दिस फंक्शन. राइट, आप इसके अंदर क्या आ रहा है? 3 आ गया ना ये. हाँ, ठीक है. राइट, so this is a my miscellaneous function. So if miscellaneous function I will give say 10. 10 दिया तो ये क्या करेगा? सब कैलकुलेट करके दे देगा. सो 10 का 10 itself, square is 100, cube is 1000, square root is 3.16 and the cube root of 10 is 2.15. So it's very easy to write your own function. Easy, right? You can write a function to calculate FMA, right? कि आप मेरे को ऐसा करिए, F is equal to ma, give me mass and acceleration, I will give you the force applied, right? Okay, so you give me velocity or maybe initial velocity, time, I will give you the acceleration. बना सकते हैं ना? Right, so you can just have the formula. You should know the formula or the mathematical calculation, right? So you can make for any. So let's make, or maybe Ohm's law, or maybe any physics, chemistry calculation, whatever you function you want to create. So let's create a def for force. I want to create a force. So you give me mass and acceleration. Okay, and what to return? It is just simply mass into acceleration. So this is my force formula. Okay, so if the force formula, if mass is 10 kg and acceleration is 2, that the force applied is 20 Newton, right? So this is how it works. So you can practically create any function. Huh. So you can have same, say for example, a quadratic equation. So to find out the root of the quadratic equation, I know now how to calculate the roots of a quadratic equation, minus b plus minus root 2 ac upon bc, right? So similarly you can write the formula. So Python के अंदर आप फॉर्मूला बना सकते हो. बहुत इजी है. डेफ करके एक फंक्शन को नाम दो, क्या क्या वैल्यू चाहिए वो इनपुट लिखो, आउटपुट रिटर्न के साथ लिख दो, योर फंक्शन इज रेडी. नाउ यू कैन यूज दिस फंक्शन में भी कहीं पर भी. मैं सबसे आखिरी में आ गया, राइट? और से फॉर एग्जांपल हेल्प,
on my force. Okay, so it says that force is a mass or acceleration का function है. मैंने कितने नीचे आके लिखा है, right? So help on my add function. बनाया था ना कुछ ऐसे add, तो इसमें p के o r 3 numbers का लगाया था. So this is a function. Help on function, add in module, right? So these are the functions are there. So very easy to write. ठीक है. अब एक थोड़ा सा कर देते हैं something slightly more interesting. So this is called as a doc string. Okay, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको doc string कहते हैं. Any question first? Any question? Why we use reverse indexing? Because sometimes reverse indexing is easy or visible, so we use reverse indexing. ठीक है, चलिए अब let's come back to this function. Now let's in this force function, okay, I want to tell to the person कि some helping कि भाई ये mass की unit क्या है, right? uh, and what are the units of, say, uh, what are the units of हमारे ठीक है. So I define it by like this. Okay, so I would like to say mass in kg, right, and acceleration in meter per second square. Okay, so meter per second square, meter per second, yeah, square से लिख लेते हैं, meter per second square. So okay, right, and then again 1 2 3. Is it okay? So मैंने क्या करा, फंक्शन वही था, राइट. अब मैंने 3 इन्वर्टेड कोमा, सिंगल कोमा एंड 3 इन्वर्टेड करके आई रन. ओके, my function is same, my output is same. Okay, what has changed? If I go and ask help for my force function, okay, so it will give me the doc string. Okay, so it will show me the text. Okay, तो ये force function का नाम, और उसमें आपको क्या डिटेलिंग कर रखी है. Okay, so mass in kg, acceleration in meter per second. You can also write created version 1.0 on 19th of November. Okay, yeah, for detailed uh, document, visit www.ybifoundation.org. But the point is this, like for example, so this is called as a doc string. Okay, और इस ये जो भी आप लिखते हैं इसका फर्क कहाँ होता है, इसका फंक्शन पे कहीं पे भी फर्क नहीं होता, पर ये आपके हेल्प डॉक्यूमेंट में चला जाता है. तो कोई भी अगर आपने फंक्शन बनाया और उसको हेल्प फोर्स या हेल्प फंक्शन नेम करेगा, तो उसको ये सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा. तो आप देखते भी होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का जैसे लेन,
अभी हमने बात करी थी कि लेंथ फंक्शन देखा था, तो उसका डॉक स्ट्रिंग दे रहा है। देखिए ये इनबिल्ट फंक्शन है और ये क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कंटेनर, सो दैट कंटेनर कैन बी अ लिस्ट, टपल, एक्सेट्रा। ओके, तो उसका अब मेरे को पता लगा कि ये लेंथ फंक्शन क्या करता है, राइट। तो ये एक आपका, इसको कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। तो हमने अपने कस्टमाइज फंक्शन का भी डॉक स्ट्रिंग बना दिया कि भाई फंक्शन का नाम ये है, मास का मतलब ये है, एक्सेलरेशन का मतलब ये है, इसका वर्जन 1 चल रहा है, इस दिन बनाया और ज्यादा के लिए यहाँ पर। So this is how you can create this. Okay. So this is that. ठीक है? Okay. So you can create the doc string also. Any question so far related to list, tuple, set, dictionary, and how to create the functions? Any doubt? बिल्कुल लेंगे भैया। पहले जो अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना, जो अभी हाथ में उसकी बात करते हैं, राइट। ठीक, एक बार और। ओके, सो जो फंक्शन का मैं एक बार और बता देता हूँ, बिकॉज आई रियली वांट यू पीपल टू क्रिएट योर ओन फंक्शंस। ओके, it will give you a lot of confidence. So the function is def, the name of the function, colon, or you need to return something. Okay, so I don't know what to return. Okay, तो ये एक आपका फंक्शन है, def name return, रिटर्न के बाद कुछ लिखेंगे अगर लेंगे तो, और उस फंक्शन के अंदर फिर आप 3 इन्वर्टेड कॉमा करके दिस इज योर हेल्प डॉक्यूमेंट फॉर, आप मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं एंटर कर करके, फॉर यूजर्स। ओके, और क्लोज कर दिया 3। तो ये सिंटेक्स है आपके फंक्शन का। तो आपको उसको नाम देना है। अगर कोई आर्गुमेंट है तो अगर आप लिख सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ब्लैंक मतलब ये कुछ नहीं करना, रिटर्न के बाद जो चाहिए वो रिटर्न करेंगे। और अगर मैं हेल्प अगर मांगता हूँ कि मेरे नेम फंक्शन की हेल्प क्या है, ओके, सो उसमें आपको कि हेल्प डॉक्यूमेंट फॉर यूजर्स, सो दिस इज द सिंटेक्स और दिस इज द वे इट वर्क्स, राइट। इज इट ओके? तो इस तरीके से शुरू कर इट वर्क्स। So now if your function is working on one variable, right, give it name as any A. If it is working on two, write name two, C, maybe three, etc. Okay, and return. So write what you want to do with your inputs. Write the formula for that, that it's just multiplying all the three numbers. Okay, so is this C? So this is how it works. You can extend the help document and so on. ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं करने के लिए। सो यू कैन राइट द फंक्शन ऑन योर ओन। ओके, सो ग्रेट। सो वी हैव लेफ्ट विद द लूप, या आई नो, एंड वी विल रिप्लेस ऑपरेटर क्या यूज होता है। ठीक, नाउ व्हाट विल डू, so you pick up to this, okay, data structure, and tomorrow we will cover up the quick revision, right, and also the loops। तो कल करते हैं इसको करने की। हाँ, चेंज कर सकते हैं, यस रिया। Now in Python. Previously answer is no. Now, yes, we can do. Okay. Thank you. Thank you, everyone. So you people will let the